Hello my dear students. Today I am going to take up the second chapter of main book Flamingo. The name of the chapter is Lost Spring. In this video I'll tell you about the story and line by line explanation. Lost Spring is an excerpt which is taken from Anees Jung's book Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Now a little about Anees Jung. This lady was born in Rourkela. She graduated in Hyderabad. She went to USA for post-graduation in sociology, and now she has earned readership as a writer, as a columnist and as a journalist. Though she came into picture with her most famous book, Unveiling India. So I think this was enough about Anees Jung. Now coming to the story. In this chapter there are two stories. I am going to take up the first story. Sometimes I find a rupee in the garbage. She has commented upon the exploitation of children in some of the hazardous jobs. In particular here we are referring to these rag pickers. So the story is about a rag picker whose name is Sahib-e-Alam. He belongs to Dhaka. Now he lives in Simapuri. And some of the key points which I am going to discuss in detail are that Anees Jung encounters Sahib. She asks about school. Why doesn't he go to school? Why is he involved in rag picking? Then there is told about the irony in his name. His name is Sahib-e-Alam. Then, as we proceed forward, there are two different meanings given about garbage. One according to elders and the other one according to children. For them, garbage is gold. They have earned, this rag picking had earned a proportion of fine art. And ultimately in the end, telling about his sufferings and his ideas, his dreams, how he lost his freedom by dropping rag picking and picking a job at a tea stall, working under a tea stall owner, losing his freedom. So now let us move to the next clip for line by line explanation. So children, I'll start with the chapter. I've already told you about Anees Jung, and please do watch this fully because I'm going to explain you line by line, and all important questions are discussed at the end, okay? Sometimes I find a rupee in the garbage. So this particular thing begins with, there is an encounter, meeting. Anees Jung meets Sahib and she asks him a question. वो उससे सवाल पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो स्क्राउंजिंग का? Why do you scrounge search gold? गोल्ड यहाँ उनके लिए गार्बेज है. वो गार्बेज डंप से घूम घूम करके जो है कूड़ा उठाता है. और साहिब ने अपना घर सालों पहले छोड़ दिया था. घर कहाँ है उसका? घर था उसका ढाका में, जो वो सालों पहले छोड़ कर आया था. और ये घर जो है, ये देखिए ढाका, बांग्लादेश से. और अब जो है वो उसकी यादों में भी नहीं है. वजह क्या थी ये भी पूछते हैं अक्सर. तो स्टॉर्म्स वजह थी जिसकी वजह से उनके फील्ड्स और होम सब बह गए थे. ये उनकी माँ बताती हैं साहिब की, और जब उनसे वजह पूछी जाती है, और उन्होंने वो शहर छोड़ दिया और अब यहाँ आ गई हैं इस बड़े शहर में. और ये बड़ा शहर क्या है? सीमापुरी. ठीक है बच्चों? तो अब यहाँ रह रही हैं सालों से. तो जब वो सवाल पूछती हैं तो वो सिर्फ ये कहता है कि क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है. तो बड़े प्यार से उसे जवाब देती हैं, कहती हैं कि अच्छा स्कूल क्यों नहीं जाते फिर? तो फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये एडवाइस, इट वाज सो हॉलो, इतना एम्प्टी और इतना इनसिंसियर लग रहा था ये एडवाइस. उन्हें लगा मैं क्या बात कर रही हूँ, अगर स्कूल जा पाता तो वो फिर कूड़े उठाता ऐसे. तो लेकिन वो बेचारा बहुत मासूमियत से जवाब दे देता है कि कोई स्कूल नहीं है मेरे नेबरहुड में, इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ, और जब बनेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा. तो मजाक में फिर अनीस बोलती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम चाहोगे? तो वो मुस्कुरा देता है और मुस्कुरा के बोलता है कि हाँ जाऊँगा,
कुछ दिनों के बाद दौड़ कर आता है और वो कहता है कि आपका स्कूल तैयार है। तो उन्हें लगता है कि ये मैंने क्या किया इस बच्चे के साथ, बहुत एम्बैरेस्ड फील करती हैं कि इसको मैंने मैंने तो ऐसे ही कह दिया था और ये उसे एक वादा समझ बैठा है। तो उन्हें तब एहसास हुआ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन, कि इस किस्म के कस्में वादे उनके जीवन में भरे पड़े हुए हैं। उनकी उस ब्लीक वर्ल्ड में, उनकी इस निरस दुनिया में हर कोने में लोगों ने जो है उनसे वादे किए हुए हैं। तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। खैर अब काफ़ी महीने हो गए थे इनको जानते हुए। तो इन्होंने एक दिन इससे पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा। तो बड़े प्यार से उसने कहा मेरा नाम साहिब आलम है, साहिब आलम है। और उसने अनाउंस किया ये, हालांकि उसे खुद इस नाम का मतलब नहीं मालूम था। पूरा नाम जो था वो फुल नेम जो है उसका मतलब ये था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जो है ये मतलब होता है पूरे अंतरिक्ष का दाता, ठीक है। तो अंतरिक्ष का दाता, उसे खुद विश्वास नहीं होगा अगर वो इस नाम का मतलब समझ जाए तो। और खैर अनअवेयर, उसे मालूम भी नहीं है इस चीज़ का। और वो गलियों में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ जो नंगे पाँव रहते हैं ग्रुप में उनके साथ, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर दोपहर होते होते तक घर वापस। तो महीनों तक जानने के बाद अब ये हर बच्चे को रिकग्नाइज़ करने लगी थी, साहिब के दोस्तों को। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम चप्पलें क्यों नहीं डालते हो, एक से उन्होंने पूछा। तो उसने कहा मेरी माँ नीचे नहीं उतारती। उसने बड़े प्यार से जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि और अगर वो उतारेंगी भी ना तो दूसरा उसका दोस्त जो है वो कहता है कि उतारेंगी भी तो ये फेंक देगा। और उसने खुद ऐसे जूते पहने थे जो मैच नहीं करते थे, ठीक है। उसमें से तीसरा बोला मुझे जूते चाहिए। जो ये दूसरा बच्चा ही अपने फीट छिपाने लगता है, अपने कदम को छुपाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता वो देखे अनमैच्ड शूज़। तो ये जो तीसरा बच्चा है इसकी एक ख्वाहिश है कि इसके पास जूते हों। चूँकि अनीस जो है पूरे देश में ट्रैवल करती रहती हैं, तो उन्होंने अक्सर देखा है बच्चों को कि वो बेयर फुटेड होते हैं, नंगे पाँव होते हैं शहर में, गाँव में। तो ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बट ये ट्रेडिशन माना जाता है। और ट्रेडिशन भी, ये चीज़ भी इनको पच नहीं रही है। तो उनका ये मानना है कि ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक एक्सक्यूज़ है। एक्सक्यूज़ क्या कि जो है उनके परपिचुअल स्टेट का यहाँ मतलब होता है बच्चों, परपिचुअल स्टेट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। अब इनको एक कहानी याद आती है ओडीपी की, ठीक है। ओडीपी की जो स्टोरी है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ स्टोरी शॉर्ट में बता देती हूँ। और स्टोरी ये है कि एक बच्चे की कहानी है जिसमें वो जब भी स्कूल जाता था तो एक पुराने मंदिर से गुजर कर जाता था। और उसका स्कूल जाते वक्त रास्ते में पड़ता था और उसी मंदिर में उनके पिताजी जो थे वो प्रीस्ट थे। तो वो रुक करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे पास एक जोड़ी जूते हों। 30 साल के बाद जब अनीस उसी टाउन में विज़िट करती हैं, ओडीपी जाती हैं, तो वो वहाँ पाती हैं कि अब भी वो टाउन तो है लेकिन अब वो डूबा हुआ है। डिसोलेशन का मतलब होता है बच्चों डाइलैपिडेटेड, मतलब जो बहुत ही खस्ता हालत में अब हो, ठीक। और उसी घर के, उसी मंदिर के पीछे जो है एक नए प्रीस्ट का परिवार रहता है। और वहाँ रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़े हैं। एक बच्चा है वो ग्रे यूनिफॉर्म में आता है, उसने सॉक्स शूज़ सब डाले हुए हैं और वो हांफता हुआ आता है, स्कूल बैग बेड पर फेंकता है। उस लड़के को देखकर उन्हें प्रार्थना याद आती है उस बच्चे की जो उसने गॉडेस से की थी कि मेरे पास एक जोड़ी जूते हों और मैं उन्हें कभी ना गंवाऊँ। तो गॉडेस ने ये प्रेयर तो ग्रांट कर दी। और ये मान के चलिए कि आज जो यंग बॉयज़ हैं इस प्रीस्ट के बच्चे की तरह उनके पास जूते हैं, लेकिन अभी भी रैक पिकर्स के पास जूते नहीं हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, माई एक्वेंटेंस विद द barefoot रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. So this Seemapuri, this is important, children. Why Seemapuri is important? Because Seemapuri is a place on periphery of Delhi. Periphery means the outlying areas. Okay, periphery means the outer edge of a particular area. And outlying areas, okay. And this line is very very important. Here the word metaphorically means virtually, okay.
which is not real actually, metaphor is here. And what has been done, सीमापुरी इज़ अ प्लेस इन द आउटलाइंग एरिया, यानी कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में तो स्थित है ये जगह, लेकिन दिल्ली से कोसों दूर। तो किस मामले में कोसों दूर? ये है इस मामले में कोसों दूर कि वहाँ ना प्रोग्रेस है, ना वहाँ डेवलपमेंट हुई है, ना वहाँ प्रॉस्पेरिटी हुई है, ठीक है। लेकिन दिल्ली तो बहुत ही प्रॉस्पेरिंग है, ठीक है। तो जो लोग, जो ये स्क्वाटर्स हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे, साहिब के परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है। उस वक्त जब ये आए थे तो सीमापुरी एक विल्डरनेस था। विल्डरनेस का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा एरिया जो कि अनडेवलप्ड एरिया ऑफ लैंड हो, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं अनडेवलप्ड, ओके, अनडेवलप्ड एरिया ऑफ लैंड। उसके बाद आते हैं हम कि ये जो सीमापुरी है, यहाँ पर इन्होंने अब वो खाली नहीं है, पूरी तरह ऑक्यूपाइड है। वहाँ पे जो उन्होंने घर बना रखे हैं वो मिट्टी के बने हुए घर हैं, और उनकी टिन और टॉपलिन की छतें हैं। ना सीवेज सिस्टम है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना प्रॉपर रनिंग वाटर है। और ये 10,000 रैक पिकर्स यहाँ रहते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ वो पिछले 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। तो ये राशन कार्ड इनके लिए बून की तरह है, क्योंकि एटलीस्ट इसकी बदौलत, वोटर लिस्ट में इनके नाम होने की बदौलत, इनको ग्रेन्स तो सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो उनमें से एक लेडी ये जवाब देती हैं कि जब हम अपने मतलब ये टैटर्ड साड़ियों में है, बहुत बुरी हालत है इनकी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कपड़ों से। और वो कहती हैं कि अगर एक दिन के अंत में मेरा परिवार अगर भूखे पेट नहीं सोता है तो बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ हूँ, बजाय इसके कि अपने देश में जहाँ उन खेतों में कुछ फसल नहीं होती थी वहाँ मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ ठीक हूँ। तो दो बातें वहाँ यहाँ कह रही है। इसका मतलब उनके लिए आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है फूड, ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है फूड। तो फूड जो इम्पॉर्टेंट है उस पर बहुत फोकस किया गया, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ भी इन्हें मिलता है खाना, ये वहाँ अपना ट्रांजिट होम बना लेते हैं, एक छोटा सा घर बना लेते हैं, टेम्प्रेरी घर बना लेते हैं। और उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन आ रही है, और वो लाइन है, आप देखें ये वाली, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, यानी इन घरों में बच्चे बढ़ रहे होते हैं, पल बढ़ रहे होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। तो ये जो पार्टनर्स इन सर्वाइवल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस करके कि क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के साथ अब कंट्रीब्यूट करने लगे हैं, ये अपने पेरेंट्स की हेल्प करने लगे हैं, और उनका जो मीन्स ऑफ सर्वाइवल उसमें अर्न करने में या उनकी डेली की डेली मदद करने लगे हैं, ठीक है। उनकी सफरिंग में, उनके अर्निंग में, हर चीज़ में वो बराबर के भागीदार हैं। और सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या मतलब है? रैक पिकिंग। तो सालों साल तक इस रैक पिकिंग ने एक बहुत ही फाइन आर्ट का प्रोपोर्शन इख्तियार कर लिया, यानी एक बहुत बड़ी कला बन चुकी है ये। और इनके लिए गार्बेज कूड़ा नहीं है ये, इट इज़ गोल्ड फॉर देम, इट इज़ सो प्रीशियस, पूरी ज़िंदगी इन पर डिपेंडेंट है, इस गोल्ड पर, ठीक है ना। तो अब बड़ों के लिए क्या है, ये मैंने वीडियो के एंड में भी मैं ये क्वेश्चन बताती हूँ, बच्चों को बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये स्टार लगा लीजिए इस लाइन के लिए, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है बच्चों की, ये कूड़ा इनके लिए एक डेली ब्रेड है, ठीक है। ना सिर्फ डेली ब्रेड, बल्कि ये इनके लिए इनका रूफ है, भले वो छत लीकिंग हो, टपकती हुई छत हो, लेकिन बच्चों के लिए क्या? तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि गार्बेज की दो मीनिंग है, एल्डर्स के लिए अलग और इनके बच्चों के लिए अलग, जो हम आगे आने वाले पैराग्राफ्स में पढ़ लेंगे। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, तो ये बच्चे के लिए ये गार्बेज एक गोल्ड तो है ही है, उसके अलावा एक
पैसा है 10, कभी वो 10 रुपये का नोट है, तो साहिब बड़े प्यार से उसको बताता है कि उसकी आंखें जल उठती हैं जब वो बताता है कि मुझे कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है, और कभी कभी तो और आप ये सोचिए अगर किसी को ये पता हो कि कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलेगा तो आप दिन भर उसको ढूंढ सकते हो इस उम्मीद में कि और मिलेगा। तो इन बच्चों के लिए इस गार्बेज की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इन बच्चों के लिए इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर। एल्डर्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल और बच्चों के लिए, तो ये दोनों क्लब कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा दोनों का ही। ठीक है, तो ऐसी ही एक सुबह जहाँ पर एक ठंड की सुबह थी, साहिब को देखा गया कि एक नेबरहुड क्लब के बाहर वो खड़ा है और वहाँ 2 यंग मैन अंदर वाइट ड्रेस में, वाइट यूनिफॉर्म में टेनिस खेल रहे हैं। तो वो बड़े प्यार से अनीस को बताता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, और बहुत ही खुश होकर ही हम्स, मतलब ऐसे गुनगुनाते हुए, और धीरे से आके अनीस को बताता है कि आपको पता है मैं अंदर चला जाता हूँ कभी कभी, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। जब कोई अंदर नहीं होता है ना तो कभी कभी मैं अंदर चला जाता हूँ। और धीरे से बताता है, एक शेयर करता है सीक्रेट अनीस से कि गेट कीपर जो है ना वो मुझे झूले भी झूलने दे लेते हैं। तो साहिब ने कहा, अच्छा, साहिब के आवाज़ में जो खनक और खुशी है इसका मतलब ये कि उसके 2 सपने हैं, जूते, एक तो स्कूल जाना, दूसरा जूते पहनना, और तीसरा टेनिस खेलना। तो साहिब के लिए क्या ये टेनिस के शूज़ बहुत मुश्किल है पाना, ये सवाल है, आगे आने वाले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले उसने जो जूते पहन रखे हैं वो टेनिस शूज़ तो ज़रूर हैं, अजीब लग रहे हैं, डिस्कलर्ड हैं, उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट से मैच नहीं कर रहे, शायद उसे किसी ने ये दे दिया है। वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे किसी ने दिया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई है ये फैक्ट ये कि ये डिस्कार्डेड जूते हैं किसी बच्चे के, जिसने खुद नहीं पहने और रिजेक्ट कर दिया और फेंक दिया कूड़े में, और ये उठा कर ले आया और अब ये पहन रहा है। ठीक है, अगले नेक्स्ट लाइनों में ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि उसके लिए ये डिस्कार्डेड जूते जिसमें एक होल है, ठीक है, और वो होल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़का पूरी ज़िंदगी बेयर फुटेड घूमा है, ठीक है, वो ऐसा एक जूता पहने जिसमें एक छेद है, तो उसके लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू है, यानी एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होने वाला था लेकिन पूरा हो गया। लेकिन सच्चाई, टेनिस शूज़ मिलना अलग चीज़ है, और इस गेम को खेल पाना, जिस गेम को वो इतनी इंटेंटली, इतनी अटेंटिवली देख रहा है, वो उसके विद इन रीच नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है, वो कभी पहुंच पाएगा उस तक। और आखिरी और लास्ट में सिर्फ ये एक तरीके से पूरा कंक्लूजन है और एक एंड है, जहाँ पर ये बताया गया कि एक सुबह साहिब जब मिल्क बूथ की तरफ जा रहे हैं, यानी उसने एक नौकरी कर ली है मिल्क बूथ में, उसके हाथ में एक कैनिस्टर है, स्टील कैनिस्टर, जिसको कनस्तर बोलते हैं हिंदी में। आपने देखा होगा चाय की केतली जो होती है या स्टील की केतली जो होती है जिसमें दूध लोग लेकर आते हैं, तो ये अब काम करता है एक टी स्टॉल में, जो दिखाता है दूर से अनीस को कि वो देखिए मैं वहाँ काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाना मिलता है दोनों तीनों टाइम का। तो अनीस पूछती है क्या तुम्हें ये काम पसंद है, उनका ये सवाल होता है क्या तुम्हें ये काम पसंद है। तो वो कहता है, कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर वो जो केयरफ्री लुक, वो जो एक बिंदास और एक नॉटीनेस और इनोसेंस थी, वो एक फ्री बर्ड की तरह एक इमोशंस थे, वो ख़त्म है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जहाँ पर स्टील कनिस्टर उसको अपने प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हैवी दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्लास्टिक बैग वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, उसे उठाते, वो बैग उसका खुद का था, लेकिन ये कैनिस्टर किसको बिलोंग कर रहा है? उस टी स्टॉल ओनर को, ये उसका नहीं है। और अब साहिब अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रह गया है, अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं कर पाएगा, अब वो किसी के अंडर है, अब वो उसके फ्रीडम को ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी आज़ादी गंवा दी है, ही इज़ नो मोर हिज ओन सेल्फ। So this is the end of the story, children. In next video I'm going to take up the next story. Okay, thank you.